Hello, students. Good morning. Welcome back. Today we are here with a new chapter, chapter number 6, and name of the chapter is Life Process. Okay. So, first of all, tell me what is the difference between living and non-living. Okay, how can you say that a particular thing is living or non-living thing? Okay, so there are certain characteristics which defines or which tells us that a particular thing is living or नॉन लिविंग. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक चीजें तो नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर आप क्या कह सकते हो कि दैट इज अ लिविंग थिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन टेक dog is running. Okay, cow is chewing something, a man is shouting loudly on the street. So running, chewing, shouting, this denotes or these are the characteristics which are possessed by the living things or living beings. Okay, living beings क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं, वो खाना खाते हैं. दैट मीन्स काऊ, अगर काऊ भी लिविंग थिंग है तो वो चिविंग करते हैं, मैन शाउट कर रहा है, या फिर इफ आई एम टॉकिंग इट शोज दैट आई एम अ लिविंग थिंग. बट what about if computer is in computer song is going to play? Okay, you are able to listen this song. So does a computer is a living thing? No. Okay, why it is not living thing? Because it doesn't have that characteristic which belongs to the living one. Okay, so the first thing, it is important what is life process. Okay, now see students, you may have studied in last year class that the living organisms are made up of tiny structure that is called cells. Okay, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं. ओके, तो ये सेल्स कैसे हैं, किधर से आए हैं, तो हम इसके बारे में देखेंगे. ओके, कि लाइफ प्रोसेस के लिए इनका क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, सो लिविंग थिंग्स में सबसे मेन चीज देखो क्या क्या होता है. एक सेल है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंसिडर होता है. दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट tissues, a group of cell is called tissue, and tissue is also part of well organized structures of the human being. Now see here, we have different body parts. Okay, we have different body parts. हमारे पास different body parts होते हैं जिससे हमको क्या होता है कि हमारा हर फंक्शन, जैसे हैंड से हम कोई भी काम कर सकते हैं. अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ द ब्लड, इट पंप्स द ब्लड. ओके, पंप्स द blood. Okay, and if I talk about the digestive system, so digestion is the work carried out by the digestive system. So on, there are different or organs in our body which carry all the functions. So now here, why it is very important to have this all functions? What is, first of all we will study what is या फिर what are life processes. Okay, so here as I have told you कि we need we perform certain functions. okay, हमारे बॉडी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक और या फिर ये फंक्शंस कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या लगता है? एनर्जी लगती है. ओके, एंड टू सर्वाइव ऑल्सो वी नीड सम एनर्जी. सो टू वर्क or to keep on moving or living, okay, we have certain maintenance processes in our life. okay, हमारे बॉडी में कुछ मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती हैं और इसी को क्या कहते हैं हम? लाइफ प्रोसेस. ओके, सो द वेरियस फंक्शंस कैरिड आउट बाय लिविंग बीइंग. ओके, हमारे बॉडी में हो या फिर हमसे, हमारे द्वारा. ओके, there are different functions which are carried out by the living thing. Why? To go on the life. Okay, which are necessary to continue the life and to maintain their life. Okay, is called
life process. Or if simply if I want to define this, ki what are the life processes? So the various function carried out by living beings which are necessary to maintain and continue live life are called life processes. Okay, and let's see which are the life processes or which human being or living beings carried out. Okay, so first is nutrition. okay, तो फर्स्ट कौन सा है? न्यूट्रिशन है, हम उसको देखेंगे. न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिशन. देन है रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन. उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन. ओके, एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीशन. देन movement, and then lastly is reproduction. Okay, there are again, but still we are going to see only this much only. I will be taking point wise point about all these concepts. Okay, so let's see what is nutrition and why this process is required in our body. Okay, nutrition क्या है और ये जो है क्यों किया जाता है? देखो ये जितने भी अभी मैंने फंक्शंस बताए हैं बच्चों, nutrition, respiration, transportation, excretion, movement and reproduction in a human body, especially multicellular organism, not only human body, इनके पास स्पेशली डिजाइंड ये होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना फंक्शन करते रहते हैं. ओके, हमारे देखो शरीर में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अभी कहा कि हार्ट है. ओके, हार्ट का फंक्शन है पंपिंग द ब्लड. हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग द ब्लड है. ब्रेन का है थिंकिंग. ओके, ब्रेन का फंक्शन है थिंकिंग और या फिर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन भी आप कह सकते हो. हार्ट का फंक्शन भी ट्रांसपोर्टेशन में कंसिडर हो जाता है. ओके, क्योंकि हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड के थ्रू ही हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ओके वो सर्कुलेट होता है. अब न्यूट्रिएंट जो होता है वो कहाँ पर आता है? तो इट कम्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट आते हैं जो कि ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर पूरे बॉडी में आता है. फिर कुछ वेस्टेज निकलता है, ये कहाँ से दिया जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में किए जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट टुडे वी विल गो थ्रू द nutrition. The process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. Okay, simple और सरल इसकी definition है. The process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. ठीक है, तो देखो हम जो भी खाते हैं किस लिए खाते हैं? To get energy. Obviously, if I will not give you food for 10 days, what will happen? You become weaker, you will feel some weakness. Okay, in same manner, if you will not eat for long time or if you will not get a proper nutrition for long time, it may lead to fatal also. Okay, तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है. ओके, so that's why nutrition is very important. How do living organism get their food? Now first point is how do living organism get their food? So obviously you know very well, हम लोग रोज खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक. ओके, कई लोग तो दिन भर खाते ही रहते हैं, ऐसा भी होता है. So that is only the food which we eat is term in short nutrition. Okay, to get energy. Why do we eat? We eat to get the energy. Okay, now see here, all the functions, okay, whether you are talking, you are sitting, sleeping, moving here and there, even thinking, all this process requires the energy. Okay, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती वैसे न्यूट्रिशन के बिना लाइफ नहीं चलती या जिंदगी नहीं चलती. ओके, सो same thing, nutrition is very important for us. Now here certain animals or certain organisms are there. Okay, which are able to synthesize their own food. Okay, certain organisms there, मैंने animals बोल दिया था, sorry for that. Organisms are there which are able to synthesize their own food. Synthesize to make. Okay, तो
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल सीधे ले लो कि आप प्लांट्स, ओके, एंड सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो प्लांट फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. सो द organism which are able to synthesize or to make their own food are called as autotrophic organism. Okay, and the mode of nutrition is autotrophic. Okay, so autotrophic mode of nutrition, in this these organisms, okay, ये जो organisms है, these are able to synthesize their own food. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, व्हाट दे डू, दे यूज सिंपल सब्सटेंसेस टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, आप लोग अभी तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते आए होंगे. आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखा होगा कि हाउ द प्लांट, ओके, टेक्स द सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड and with the help of क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के हेल्प से कैसे फूड को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको यूज करके वो कैसे फूड को प्रिपेयर करता है. ओके, तो हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट वी विल सी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसमें द ऑर्गेनिजम्स, ओके, ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड are called autotrophs. and autotrophs में plants. okay, why plants are able to synthesize the food? because there is a presence of the pigment chlorophyll. okay, chlorophyll की presence के वजह से क्या होता है कि plants अपना फूड बनाने के लिए रेडी होते हैं. ओके, प्लांट्स में क्या होता है, अपना फूड बनता है. so let's see how this process is carried out. okay, so you can see this diagram. oh sorry, so here you can see it is a leaf. okay, so leaf has chlorophyll in it. chlorophyll का काम क्या होता है, chlorophyll का काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ओके, chlorophyll का काम क्या होता है, it traps the sunlight. okay, suppose this is a leaf. okay, leaf has a chlorophyll and chlorophyll क्या करता है, sunlight को trap करता है. this is sun. okay, sending the rays. so this solar energy, because sun's energy is known as solar energy. solar energy is trapped by the chlorophyll and it is converted into chemical energy. okay, if you can see this structure here, okay, if you can see this structure, let me clear this. okay, अगर आप ये देख सकते हो तो यहाँ फॉर्मूला दिया है. okay, तो क्या फॉर्मूला है, C6, सॉरी, चलो, 6CO2 12H2O. okay, and it gives C6H12O6, that is glucose. extra product given by this is oxygen, that is O2 and H2O. तो ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीफ है या फिर लाइट एनर्जी, इसको आप सोलार एनर्जी भी कह सकते हो, ये जो सोलार एनर्जी है प्लांट के या फिर लीफ के थ्रू, या फिर जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, ओके, ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ओके, it traps the solar energy. okay, then this light energy or solar energy is converted into the chemical energy. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि सपोज देखो, ये हो गया सन, ये हो गई लीफ. ओके, अब इस लीफ में सनलाइट ड्रॉप हो रही है. ओके, एंड फॉलिंग द सनलाइन, दिस sunlight is trapped by the chlorophyll. and chlorophyll, what the chlorophyll perform, it converts the solar energy into the chemical energy. chemical energy में उसको convert करता है. ओके, और इसमें क्या होता है कि देखो, किसके किसके और क्या चाहिए हमको, सिर्फ ये सोलार एनर्जी और केमिकल एनर्जी नहीं चाहिए. अब केमिकल क्या क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है. एंड इन दिस द स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. ओके,
एंड वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है. ओके, देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और वो क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये कौन सा मेथड है, ऑटोट्रॉपिक. मतलब इसमें क्या होता है, प्लांट्स अपना खुद का फूड, नॉट ओनली प्लांट्स, देयर आर सर्टन बैक्टीरियाज, ओके, जो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं. नाउ द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस फूड, कुछ अमाउंट ऑफ फूड क्या होता है, प्लांट या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिसने इसको प्रिपेयर किया है, वो उसको क्या केयर करता है कि अपने एनर्जी के लिए, ऑब्वियसली वो खुद बनाएगा तो खुद खाएगा ही. ओके, सो वो यूटिलाइज करता है, एंड जो एक्सेस है उसको कहीं ना कहीं प्लांट बॉडी में स्टोर करके रखता है. ओके, तो सिंपल है कि कैसे ये प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो और देखो, चलो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ कि कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. ओके, हाँ, सो यू मे अंडरलाइन दिस कि हियर देखो, क्लोरोप्लास्ट इट इज present in the chlorophyll. Chloroplast it is present in the chlorophyll which are very microscopic. ओके, और ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, ओके, एज वी डोंट हैव क्लोरोफिल इन आवर बॉडी, वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज आवर फूड. इन सेम मैनर अगर क्लोरोफिल प्लांट्स में भी नहीं होता तो ये क्या करता, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, सो नाउ सी हियर कि द आई हैव एक्सप्लेन यू कि CO2, okay, CO2 is taken from the air, okay, and water it is absorbed by the roots. ठीक है, okay, now see this is a plant structure, this is the root का function क्या है कि वो water को लेता है, and जो leaf है, leaf में क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं. ओके, अब इस लीफ के अंदर छोटे छोटे, अब हमारे को CO2 भी चाहिए, CO2 कहाँ से आएगा. ओके, सो ऑन द लीफ देयर इज अ टाइनी डॉट्स, and these dots or opening we can call, not a dot, the tiny openings which are known as stomata. Okay, these are small pores which are responsible for exchange of gases. Okay, ये जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है. ओके, नाउ देखो कि आपका जो स्टोमेटा है कैसे क्लोज एंड ओपन है. यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमारी नाक होती है. ओके, वी हैव नोज एंड 2 नोस्ट्रिल्स. ठीक है, इन थ्रू विच वी कैन ब्रीथ, एंड व्हेन वी ब्रीथ our body lifts up and relaxes. Okay, in same manner our lungs contracts and relaxes. In same manner the stomata also, okay, here it is relaxed, that means open, and here it is contracted. In this manner the exchange of gases takes place in the plant. Okay, so I hope so you people are able to understand. Okay, now one more function I can say. Now if you will see this guard cells, okay, guard cell present in the stomata, the function of guard cell is that it acts as, अगर आपने कभी छुईमुई मिमोसा, ओके, इसका प्लांट देखा होगा, तो इसमें जो है ये प्लांट जैसे ही आप उसको फिंगर टच करते हो वो श्रिंक हो जाता है. क्यों? क्योंकि it is called as a touch me not. Okay, but here the reason is that the guard cell ये क्या करता है, अपने आप को श्रिंक कर लेता है, और इस वजह से उसके पत्ते पूरे श्रिंक हो जाते हैं, और हमको लगता है कि देखो ये प्लांट कैसा है, छुई मुई है. ओके, टच मी नॉट है. ओके, सो होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे
कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और इसको कैसे, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन किया जाता है. ओके, सो हियर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेट्स सी. ओके, so heterotrophic mode of nutrition, if I define, the mode of nutrition in which an organism takes food from another organism. Okay, what is the definition of heterotrophic nutrition? So the mode of nutrition in which an organism takes food from another organism, or with the organism obtain food from another organism, or you can write the organism depends on other organism for their food, are called heterotrophic. Okay, and is called या फिर heterotrophic mode of nutrition. Okay, now इसमें you can see, for example, the deer, here it is given, deer depends on the plant. Okay, deer क्या करता है, plants पर depend होता है. Okay, plants खाता है. और इस डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है या फिर लायन खाता है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है. ओके, तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है. अगर ये लायन डेड हो जाता है तो इसको कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डीकम्पोज कर देगा. इफ द लायन डाइज, ओके, लायन अगर मरता है तो उसको कौन डीकम्पोज करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं. एंड दिस डीकम्पोज्ड nutrient, whatever you can say, lion becomes the nutrient for the moulds, yeast and mushrooms. Now these organism, these microscopic organism, what they do, they absorb the nutrient which they get from the decomposition. Okay, so hope so. Now देखो, this is the direct dependence of the food. Okay, now there are certain heterotrophic organisms which, if I can say, there are different types of heterotrophic organism. One we are there, other is saprophytic, then holozoic. So these are the certain organism which depend on other organism. इसमें देखो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कस्कुटा, ओके, टिक्स, लाइसेस, लीचेस एंड टेपवर्म्स. ये सब ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक है. जो जू है अपने सिर पे रहते हैं और अपने सिर पे से खून पीते हैं, वैसे ही लीचेस भी हैं. टेपवर्म हमारे स्टमक में हो जाएगा. अमरबेला जो है, अमरबेल या फिर कस्कुटा इट बाइंड्स अराउंड द प्लांट. ओके, सपोज ये ट्री है तो उस ट्री को सराउंड करेगा और एक सकर रूट प्रोड्यूस करेगा. ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. ठीक है, तो सकर रूट प्रोड्यूस करेगा और इसके थ्रू वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा. कौन, कस्कुटा. ओके, सो फॉर टुडे आई होप दिस इज सफिशिएंट. I will be making the next video in which I will be explaining you how do organism obtain their nutrient and nutrition in human being. Okay, till that keep on reading. If you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.